To all, myself Avik Roy from the MATHEMATICSICON channel, your mathematics teacher. So how are you? I'm fine. And in this lecture just we are going to discuss a very new chapter from the application of differentiation, and that is the increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. So I think it will be the first lecture from this increasing and decreasing function, and I think this tangent normal chapter was completed. So from today onwards that the new chapter is going to be started, and that is that increasing and decreasing function. So this increasing and decreasing function, it's a very important chapter for the 12 candidates, for the JEE main advanced candidates. So this chapter, this lecture is very important, because in this lecture the various basic concepts are going to be discussed, and I think you should follow these lectures very well and very religiously also. And just if you have any doubt, if you have any queries, just you can ask me in the comment section or in the description box also. So just write the first question, so start with the concept actually. What is increasing and what is decreasing function? So increasing function, decreasing function, क्या है ये सब चीज? Increasing function मतलब है, सपोज किसी भी चीज का, किसी भी काम का, एक्टिविटी का वैल्यू अगर बढ़ता रहा, ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला गया। अब किसी भी एक्टिविटी और किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर डिक्रीजिंग, दैट मींस कम होता गया, तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। नॉर्मल भाषा में जो बोला जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट मींस कोई भी फंक्शन का वैल्यू अगर बढ़ता रहा तो इंक्रीजिंग, अगर कम होता रहा तो डिक्रीजिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में तो हो रहा है ना। सो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स of the increasing and decreasing function. Now mathematically how can we express this increasing and decreasing function, that will be discussed right now. So this lecture is very important, just take a note on that. So let's start. Increasing and decreasing function, this lecture is very important for board and the JEE main advanced candidates also. So यहाँ पर increasing function जो मैथमेटिकली हम लोग बोलेंगे, मैथमेटिकली क्या होता है, सपोज फंक्शन, मैंने बोला था फंक्शन चैप्टर में, इन द फंक्शन चैप्टर आई थिंक एज यू ऑल नो दैट फंक्शन, two things are required. First one is input, second one is output. So input and output, these two combination are very important for the function. So input यूज करोगे, आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट अगर बढ़ता रहा, उसके साथ साथ अगर आउटपुट भी बढ़ेगा, then this function will be increasing function mathematically. And if with respect to the input values, and this input values is increasing, but the output values is decreasing, then this function is called the decreasing function. So that means this combination of the input and the output values are very much important for the increasing and decreasing function as well. If the input values are increasing but the output values are decreasing, then decreasing function it is. And if the input values are increasing but the output values are also increasing, then this function is called increasing function. So mathematically उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, just see. Now point number 1, if fx be any real valued function, obviously real valued ही होना चाहिए, real valued function, and for the input values x1 and x2 belongs to obviously real number से ही चूज करना है, then point number 1, if x1 less than x2, that means जितना सामने जाओगे इनपुट वैल्यूज बढ़ता रहेगा, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, उसके बाद x3 और भी बड़ा होगा, x4 और भी बड़ा होगा, x5 और भी बड़ा होगा, that means input values are in the increasing order. So if the input values are increasing, and for this input value x1 input, so fx1 will be the output.
if the output value, that means fx1 and fx2, that means input are increasing and the outputs are also increasing, okay, then fx is strictly increasing. Strictly means this word, actually this strictly, what does it mean? Strictly means it must be an increasing function. That means forcefully, that means you are giving force. Okay, so this word increasing means what? Increasing function means, okay, this increasing function, it may be equal also, fx1 equals to fx2, it may be possible, but whenever just you will use this strictly word, then obviously that condition must be satisfied. That means fx1, obviously fx1 will be less than fx2. ओके, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है. स्ट्रिक्टली मतलब बहुत जोर से बोला जाता है इसको, ठीक है. सिमिलरली इफ x1 लेस देन x2, दैट मीन्स यहां पर भी आप इनपुट वैल्यूज जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है. fx1 ग्रेटर देन fx2, दैट मीन्स यहां पर देखो x1 इनपुट के लिए आउटपुट fx1 है, वेरी गुड. इनपुट तो बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये लेस देन साइन है, बट fx2 देखो यहां पर कम हो गया, दैट मीन्स fx1 ग्रेटर है, fx2 छोटा है, दैट मीन्स द वैल्यूज, दैट मीन्स आउटपुट वैल्यूज आर डिक्रीजिंग ऑर्डर. fx1 से fx2 छोटा है, fx2 से fx3 छोटा होगा, fx3 से fx4 छोटा होगा, दैट मीन्स जितना सामने जाओगे द वैल्यूज ऑफ द आउटपुट्स will be decreased. Okay, that's why this function is called, that's why fx is strictly decreasing. Strictly decreasing. Okay, so these are the strictly increasing and the strictly decreasing functions. Okay, so whenever just we will not use this strictly word, then what will be happen? Just write it. Point number 3. If x1 less equals to x2, that means the values of input may be equal. Okay, so fx1 less equals to fx2, so fx is normal increasing. No need to use this strictly because it may be equal also. Okay, so equal अगर हो जाए तो कहां से strictly रहेगा? वो तो normal increasing है, हो भी सकता है, equal भी हो सकता है, ठीक है. Point number 4, if x1 less equals to x2, fx1, okay, greater equals to fx2, then fx is decreasing, only decreasing word, no need to use this strictly, only increasing and decreasing. That means what is the difference between the strictly increasing and the increasing? Only the equal sign will be used. Just you can see in the strictly increasing part equal sign is not there, but in the increasing part equal sign is there. That means fx1, that output values, it may be equal, no problem. It will depend on the question actually. Okay, whenever just you will solve the questions, then you will see the inputs are increasing or inputs are equal, but after using these inputs, the values of the outputs actually what will be coming on. Okay, after solving, after a long calculation, some outputs will be there. Outputs may be equal or increasing. Okay, so then this type of functions is called only increasing. That means no need to force these things. Okay, force नहीं करना है, increasing है, simple. Okay, अच्छा, ये these are the basic concepts of the increasing and the decreasing function. Increasing and the decreasing function. Now let us go to the advanced level of the increasing and decreasing function. A very important concept regarding the increasing and decreasing function, and that is that, give the heading, first order derivative test. First order derivative test. Okay, next concept is first order derivative test. Just write this, give the heading first order derivative. Okay, okay, first order
derivative test. First order derivative test. Okay. Now, what do you mean by this first order derivative test? You can see in the heading, derivative word is used. That means we have to use this differentiation, ddx. Okay. So simple thing, we have to use this ddx part. So at least actually you should know the differentiation concept. I think you all know about the differentiation concept. Okay. So fx be any real valued function, and x1 comma x2 belongs to R. Okay. Now we know that, हम लोग जानते हैं, we know that f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. It is the first order differentiation concept. Actually, this is the first principle of differentiation concept. I think from this concept, the differentiation was actually was introduced. Okay. So now, point number 1. यहाँ देखो, for increasing concept क्या था? x1 less than x2. This implies f of x1 less than f of x2. ये increasing का concept था, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर देखो तो fx1 less माइनस करके fx2 less than 0 ऐसे लिख सकते हैं. ओके. तो x1 छोटा वैल्यू है, x2 बड़ा वैल्यू है कि नहीं? तो fx1 छोटा होगा, fx2 बड़ा होगा. अच्छा, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशिएशन, दिस फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, अब मुझे बोलो यहां पर दो वैल्यू है, एक है x प्लस h, दूसरा है x. कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा? x छोटा होगा ऑब्वियसली, x प्लस h बड़ा होगा ऑब्वियसली. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बड़ा वाला जो है वो सामने रहना चाहिए, बड़ा वाला जो है वो सामने रहेगा, छोटा वाला जो है वो पीछे रहेगा, है कि नहीं? अच्छा, यहां पर देखो छोटा वाला सामने है, बड़ा वाला पीछे है, तो उसको थोड़ा इंटरचेंज करते हैं. एक काम करते हैं, बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, fx1 माइनस ऑफ f ऑफ x2. अब जब माइनस मल्टीप्लाई करोगे तब याद रखना ये लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. ऑब्वियसली in the linear inequality formation, whenever this minus sign will be introduced in any line, then the inequality sign will be changed. Okay, the less than sign will be changed to greater than sign, and the greater than sign will be changed to less than sign. Just remember this concept. Okay. Okay. तो that means अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूं, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, f ऑफ x प्लस h मतलब x2 का वैल्यू x प्लस h माइनस f ऑफ x, दैट मीन्स x1 का वैल्यू x, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा. सो दैट इज f dash x. डेफिनेशन क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h. अगर ये पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली द होल पार्ट विल बी ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? तो ये पूरा पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा. सो दैट इज क्या निकला? f dash x ग्रेटर देन 0. सो दैट मीन्स व्हेनेवर ए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, अच्छा स्ट्रिक्टली लिख लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन f dash x will be greater than 0. Okay, it is the first order derivative test. So f dash x will be greater than 0. So whenever a function will be given, just if you will be given the question that you will have to check that this function is increasing or decreasing. Just that means you have to check these things. So if you want to check these things, then the given function will have to be differentiated.
Okay, after that, if f dash x will be greater than 0, then the function will be increasing. Okay, for any values of x, f dash x will be greater than 0, then this function will be increasing. Okay, now it's time to decreasing function. Decreasing में जाएंगे, यहां पर decreasing लिख लो. So strictly ये पॉइंट नंबर 2, decreasing. Decreasing में क्या होता है, ये तो सेम रहेगा, ये साइन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, f of x1 माइनस f of x2 ग्रेटर देन 0, है कि नहीं. So f of x1 greater than f of x2. Now if you take this f of x2 in the side, then same thing will be happen. f of x2 minus sign multiply कर लो, f x1 minus f of x2 ग्रेटर देन नहीं होगा, ये स्मॉलर देन हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया है. फॉर एग्जांपल ले लो, सपोज 2 greater than 0, we know that. Now multiply minus on both side, minus 2 and 0, तो ये साइन के ग्रेटर देन रहेगा, ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. So that means whenever this minus sign will be introduced on both side, then the inequality sign will be changed. Remember this thing. Okay, कोई भी नंबर हो 2 less than 3, अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, अब ग्रेटर हो जाएगा ना, -2 तो -3 से ग्रेटर है, तो माइनस साइन इंट्रोड्यूस करोगे, दैट मीन्स इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स यहां पर f of x2 माइनस f of x1 लेस देन 0. सो ये है कॉन्सेप्ट. यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h. अच्छा, यहां पर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ये हम लोग लिख सकते हैं f of x plus h माइनस f of x, दैट मीन्स x2 होगा x plus h और x1 होगा x, ऑब्वियसली लेस देन 0 होगा. सो f dash x इक्वल्स टू क्या मिला था तुम्हें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h, ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा क्योंकि न्यूमरेटर वाला जो है वो लेस देन 0 है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 होगा. सो दैट मीन्स f dash x लेस देन 0 होगा. कब, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस टू कॉन्सेप्ट्स we have come to know that whenever the function will be strictly increasing or strictly decreasing, then using the first derivative test we can write f dash x greater than 0 for increasing and f dash x less than 0 for decreasing. Okay, now is the strictly increasing and strictly decreasing. Now what will be for the increasing and decreasing part, only just you have to introduce equal sign with both the parts. Okay, so ये तो 2 नंबर है, so third point लिख लो. So a function will be increasing, third concept लिख लो, fx will be increasing, then f dash x greater equals to 0. fourth point होगा fx is decreasing, then f dash x less equals to 0. Very simple thing. Okay, now if you draw the figure, अगर आप फिगर ड्रॉ करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, ऐसा अगर हो, इस साइड में x रहेगा और इस साइड में fx रहेगा, तो इंक्रीजिंग का क्या होगा, x का वैल्यू बढ़ेगा, दैट मींस इनपुट बढ़ेगा, दैट मींस x का वैल्यू आप बढ़ाते रहोगे, बट उसके साथ साथ fx का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा, दैट मींस कुछ ऐसा है, बढ़ता रहेगा, है कि नहीं. तो ये ग्राफ है, x के साथ साथ x तो बढ़ ही रहा है, देखो जितना इस साइड में जाओगे उतना x बढ़ेगा, उसके साथ साथ fx भी बढ़ता रहेगा, दैट मींस इसका हाइट भी बढ़ता रहेगा, है कि नहीं. तो ये है इंक्रीजिंग, ओके, और स्ट्रिक्टली होगा, स्ट्रिक्टली क्योंकि ये 0 को टच नहीं करता, 0 को टच नहीं, अगर 0 से टच होके निकलता
तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होता। ओके, सो डिक्रीजिंग में क्या होगा, सेम ही होगा। यहां पर इस साइड में x और इस साइड में fx ले लो, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा मतलब यहां पर fx का वैल्यू कम होता रहेगा, है कि नहीं। तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो जीरो से स्टार्ट होता, ऐसे कुछ निकलता, है कि नहीं, जीरो से पास होता ये ग्राफ। तो ये होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ, ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ। ठीक है, हो गया। अगर यहां पर हम लोग जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, टुडेज फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज x1 लेस देन x2, fx1 लेस देन fx2, ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करके अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करें, तो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो लिखो, इफ fx इक्वल्स टू, इफ fx equals to twice x plus 3, okay, for all x belongs to 0 comma infinity, prove that it is strictly increasing, ठीक है। तो यहां पर देखो स्ट्रिक्टली, यहां पर x का वैल्यू 0 होने से देखो fx का वैल्यू 0 नहीं होता है कि नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, या फिर स्ट्रिक्टली होगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो, स्ट्रिक्टली होगा। यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करने से इनपुट अगर 0 भी पुट कर दे तभी भी कुछ आउटपुट मिल रहा है यहां पर। ठीक है, दैट मींस ये ग्राफ जो है कभी भी 0 से पास नहीं करेगा। अगर आउटपुट 0 नहीं निकल रहा है, दैट मींस व्हाट, ये इंक्रीजिंग सिर्फ नहीं होगा, ये स्ट्रिक्टली ही होगा। सो गिवन fx equals to twice x plus 3 for all x belongs to 0 comma infinity, let, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए दो वैल्यूज आपको चूज करना पड़ेगा। कहां से, ये 0 comma infinity इंटरवल से, जो इंटरवल गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसी इंटरवल में आपको चूज करना पड़ेगा। लेट x1 लेस देन x2, ये जानते हैं हम लोग इनपुट बढ़ाएंगे। अब चेक करेंगे इनपुट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी यहां पर इंक्रीज होगा या नहीं। ओके, सो तो इनपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो दैट मींस इनपुट से हम लोगों को आउटपुट की तरफ जाना है। ठीक है, अच्छा, आउटपुट यहां पर क्या है, 2x plus 3, तो ये इनपुट वैल्यूज है। अब इस यहां से अगर आउटपुट में मुझे कन्वर्ट होना है, नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस x1 लेस देन x2 टू द output values will be what, just write it 2x1। okay, यहां पर देखो x के साथ एक 2 मल्टीप्लीकेशन में है, so if you multiply 2 on both sides then the same thing will be happen। okay, so अगर मैं both side plus 3 भी करूं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो this expression can be written as f of x1 and this expression can be written as f of x2. So I think this condition is for the increasing part. So fx is strictly increasing. Okay, again, so that means देखा कैसे conversion, this conversion is the main thing, main concept of this type of calculations. Whenever this x1 less than x2 is going to be chosen, and after that this input values will have to be converted to the output values. And how can you convert? Just you have to see the given fx and whatever the expressions are given in given fx, then I think you should have taken the same expression, you should have converted these input values, input things to the output expressions as well। okay, तो यहां से मिला के हम लोगों ने एक आउटपुट एक्सप्रेशन बनाया है कि नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल गया आपको। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख लेते हैं एक तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो, -2x कर दो, -2x, ठीक है। क्वेश्चन बाकी प्रूव दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपको प्रूफ करना है। ये -2x है, ये भी ठीक रहेगा, है कि नहीं। अब नाउ
सेम यहां पर एक ही काम करना है आपको, x1 लेस देन x2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन fx 2 शुड बी मल्टीप्लाइड टू x1 टू x2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर मैंने +2 मल्टीप्लाई किया है हर एक के साथ, अगर -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का सेम रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। whenever this minus sign will be introduced by you only, then the inequality sign will be changed, will be reversed. Okay, so 2x1, अब देखो बोथ साइड एक माइनस भी इंट्रोड्यूस करना है, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये साइन क्या लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन हो जाएगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आपने इंट्रोड्यूस किया है। अब 2x1 बोथ साइड +3 भी इंट्रोड्यूस करना है, +3 ये -2x2 +3, तो ये होगा आपका fx1 और ये होगा आपका f(x2). सो दैट मीन्स ये किसका कंडीशन है? वैल्यू कम हो रहा है, fx1 का वैल्यू ज्यादा है, fx2 का वैल्यू छोटा है, तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज fx is decreasing, strictly decreasing function. So these are the basic questions from the increasing and decreasing functions. Okay, so this type of questions are very important for I think for 1 mark and the 2 marks questions as well. Okay, so I think you need to solve this type of questions for getting more and more confidence in the short type questions as well. Okay, now I think in class 11 you have solved the linear inequality chapter. This linear inequality chapter will be used in this increasing and decreasing functions purportedly. So I think in the increasing and decreasing functions, okay, I think you will have to find the range of the domain. I think the values of x, okay, the range of x will have to be found by using this linear inequality formations. The questions will be like that. A function will be given. Okay. Now the question will be, this function is increasing. This function is increasing. Question में given है, this function is increasing. Find the value of x. आपको x का value निकालना है. So for that means for which values of x this function will be increasing. So for this type of questions you will have to use this linear inequality calculations, just like this interval निकालना जो होता है वो very important. Okay, एक क्वेश्चन करते हैं, देख लो. If ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है. देखो, if 1 by x plus 1 minus 4 by 2 plus x whole square greater than 0, find x का वैल्यू निकालना है, ठीक है. ये लिनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन है. जस्ट लेट्स चेक, do you have remember this thing, this linear equality solutions or not? Okay, just you have to remind all these things. So just remember this thing, whenever just you are solving the inequality questions and whenever just you need to find the intervals, then remember this thing, this plus sign and middle sign which is surfaced in this middle, you can see, okay, which is given in the middle. This minus sign will have to be erased, will have to be omitted from this middle part. So how can you omit? Just only one concept you have, taking LCM, x plus 1 and 2 plus x whole square. So 2 plus x whole square minus 4 x plus 1 greater than 0. So that means 4 plus 4x plus x square minus 4x minus 4 by x plus 1 whole square 2 plus x whole square greater than 0. So 4x cancel, 4 cancel. So I think x square by x plus 1 whole square 2 plus x whole square greater than 0.
इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। सो x बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर और बाकी रह गया 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. So that means this whole expression below will have to be greater than 0. Okay, so I think if you have the square power on any expression, so obviously the value will be greater than 0. किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर अगर स्क्वायर पावर है, इवन नंबर पावर है, स्क्वायर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इवन नंबर पावर जब होता है ना किसी एक्सप्रेशन के ऊपर, तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो होना ही है. ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन 0. वी नो दैट. सो हियर x by 2 plus x whole square obviously greater than 0, but under one condition. If x not equals to 0, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है. अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, देखो 0 बाई समथिंग कुछ भी होनी चाहिए, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. बट इसको तो ग्रेटर देन 0 होना है, 0 नहीं होना है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू चाहिए, 0 नहीं चाहिए. अगर x का वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया यहां पर, तो यहां पर तो आंसर 0 आ गया. तो 0 तो नहीं होना चाहिए ना, 0 से ग्रेटर आना चाहिए. तो दैट मीन्स x का वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, 0 के अलावा यहां पर आप कुछ भी पुट करें विदाउट 0, एक्सेप्ट 0, whatever the values the difference can be chosen here, whatever the values are chosen in this given expression, that will be greater than 0. Okay, so now 1 by x plus 1 greater than 0, ये है मेन चीज. यहां पर जो है एक्सप्रेशन क्या दिखाई दे रहा है? x प्लस 1 है कि नहीं? तो x प्लस 1 एक एक्सप्रेशन है, तो वहां से x का वैल्यू क्या है? -1 आ रहा है. x का वैल्यू क्या है? -1. ठीक है, अब एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे, इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट. x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू जब इनइक्वालिटी सॉल्व होता है तब आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आपको सॉल्व करना है. -1 से छोटा वैल्यू चूज करो, -1 से ग्रेटर वैल्यू चूज करो, क्योंकि x का वैल्यू -1 है. x प्लस 1 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, है कि नहीं? तो -1 से छोटा वैल्यू चूज करो. ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर, x का जो भी वैल्यू आप चूज करोगे यहां पर बिठाओगे, एक्सप्रेशन का आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. अगर ग्रेटर देन 0 नहीं आया, दैट मींस दैट वैल्यूज विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, सो -1 से छोटा वैल्यू -2 पुट करो. -2 ये माइनस आ रहा है, देखो, तो -1 से छोटा हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे. किसका वैल्यू? x का वैल्यू. -1 से ग्रेटर वैल्यू चूज करो, 0. 1 बाई 0 प्लस 1, हाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है. दैट मीन्स -1 से ग्रेटर वैल्यू हम लोग चूज कर सकते हैं. दैट मीन्स वैल्यू क्या मिला? x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है. ठीक है, ओके. तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग को क्या मिला था कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब यहां पर क्या मिला? x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होगा, -1 से छोटा चूज नहीं कर सकते. अब कंबाइन करेंगे. नाउ कंबाइन, अब कंबाइन करेंगे. -1 से ग्रेटर चूज करना है. दैट मीन्स x का वैल्यू -1 से ग्रेटर मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू -1 से ग्रेटर, दैट मीन्स -1 टू इंफिनिटी. -1 से छोटा तो नहीं चूज कर पाओगे. अब -1 टू इंफिनिटी जब चूज करेंगे, बीच में तो 0 भी आ रहा है, बट 0 तो चूज नहीं कर सकते. तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर 0 लिखते हैं, यूनियन देके 0 टू इंफिनिटी लिख देते हैं, बस हो गया. यही होता है x का वैल्यू. तो आपको ये क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन दैट सर यू हैव टोल्ड मी दैट हियर फॉर दिस एक्सप्रेशंस एक्सेप्ट 0 you can choose any values of x from the real number. Okay, तो याद रखना ये जो x का वैल्यू है सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, इसके साथ और भी एक एक्सप्रेशन है. दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करके जो x का वैल्यू मिलेगा वही होगा फाइनल, है कि नहीं? तो यहां पर तो इसमें तो मैंने बोला था कि 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी चूज कर सकते हो. ये एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट गया. इस पार्ट में आया है x का वैल्यू -1 से ग्रेटर होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं आ सकते हो तुम. तो दोनों का हम लोग कंबाइन करेंगे. अब कॉमन लेंगे. कॉमन मैंने बोला था 0 का वैल्यू कुछ भी चूज करो, x का वैल्यू कुछ भी चूज करो. अब कुछ भी इसे -1 से ग्रेटर वैल्यू लोगे, -1 से छोटा नहीं लोगे.
सो -1 से ग्रेटर लेने से देख रहा हूं कि -1 टू इंफिनिटी जा रहा है कि? अब फिर से देख रहा हूं कार्य -1 टू इंफिनिटी, बीच में तो जीरो भी आ रहा है ना, -1 टू इंफिनिटी जीरो भी आ रहा है मिडिल में। अब जीरो को क्या करें, अब जीरो में तोड़ देंगे उसको मिडिल में। जीरो को तोड़ के हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। जीरो क्लोज इंटरवल नहीं देना है, ओपन इंटरवल देना है। अगर आप लोग क्लोज दे देंगे दैट मीन्स जीरो के साथ इक्वल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ओपन दिया गया। देखो ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ओके। ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करो। इफ और एक क्वेश्चन करेंगे, इफ 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, if 4x cube minus 24x square plus 44x minus 24 greater than 0, आपको find x निकालना है। तो here fx equals to 4x cube minus 24x square plus 44x minus 24 greater than 0, ये given है कि नहीं? Now I think it is the cubic polynomial. So using this polynomial, I think you can't find the values of x. For getting the values of x, this cubic polynomial will have to be factorized. Without using this factorization method, you can't get the values of x here. So at first we have to factorize this cubic polynomial. So for factorizing this cubic polynomial, we have a method, and that is zero method, trial and error method, है कि नहीं? अच्छा, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? ये देखो, ये क्या एक पोलिनोमियल है, 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। आपको x का ऐसा कोई वैल्यू आपको चूज करना है जो इस एक्सप्रेशन में पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो जीरो निकलता है कि नहीं? तो अब बोलोगे सर x का वैल्यू तो यहां पर बहुत सारा हो सकता है, क्या चूज करूं मैं? एट फर्स्ट यू नीड टू चूज -1 +1 और इसके बाद -2 +2। ये चार वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आई थिंक विल बी गिवन बाय यूजिंग दिस फैक्टर्स, यूजिंग दिस वैल्यूज। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन इतना ज्यादा लंबा नहीं देते को, तो या इसके ज्यादा लंबा देंगे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से 10 मिनट चला जाएगा, है कि नहीं? तो ज्यादातर ये चारों वैल्यू में ही रोटेट करता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, +1 से x का वैल्यू +1 चूज करते हैं सपोज। तो यहां पर देखो, ये 4, ये -24, ये +24, ये -24, है कि नहीं? तो यहां पर देखो, ये -20, ये +20, 0 हो गया। तो दैट मींस x का वैल्यू 1 पुट करने से इसका आंसर 0 हो गया। तो फैक्टर क्या आएगा? x - 1 = 0। दैट मींस ये है एक फैक्टर। सो दैट मींस whenever just you will factorize this cubic polynomial, out of this 3 factors, x - 1 will be the one factor, and other 2 factors we don't know. Okay, we need to find these other 2 factors, but at least one factor we know. So if you know at least one factor of this cubic polynomial, then other 2 factors can be found by 2 process. एक है डिविजन प्रोसेस, x - 1 से ये पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर दो, जो क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को ही अदर 2 फैक्टर मान लोगे तुम। और भी एक है सिंपल कॉन्सेप्ट है 4x क्यूब। अब 4x क्यूब के बाद ऐसा कोई टर्म आपको लाना पड़ेगा जिससे आपको x - 1 फैक्टर जो है वो मिल जाए। fx 4x क्यूब है ना, उसके बाद देखो मैं 4x स्क्वायर ला रहा हूं। 4x स्क्वायर कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? x - 1 रहेगा ना। यहां पर देखो 20x स्क्वायर, क्योंकि 24x स्क्वायर था ना, उसमें से तो 4 तो मैंने ले लिया, 4 को ले लिया, 20 बाकी है। तो उसके बाद +20x +24x -24 > 0। सो यहां से 4x स्क्वायर कॉमन, x - 1, यहां से 20x कॉमन, x - 1, यहां से 24 कॉमन, x - 1 > 0।
सो तीनों फैक्टर से x माइनस 1 कॉमन आता है, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 1, यहां से 4 अगर कॉमन ले, x स्क्वायर 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब 4 कॉमन बाहर तो लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि 0/4 तो 0 हो गया। x माइनस 1, यहां पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर्स क्या क्या मिला, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब 3 फैक्टर मिला। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट क्या होता है, 1 2 3। अब आएंगे 1 से छोटा, 1 से ग्रेटर, 2 से छोटा, 2 से ग्रेटर, 3 से छोटा, 3 से ग्रेटर। चूज करेंगे किसके लिए ये जो ग्रेटर देन पार्ट कंडीशन है will be satisfied. Now we will go for the checking. अब 1 से छोटा चूज करो, 1 से छोटा 0 चूज कर सकते हो। 1 से छोटा 0, 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव, 0 माइनस 2 नेगेटिव 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 नेगेटिव, अल्टीमेट आंसर नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 आना चाहिए बट नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, दैट मीन्स 1 से छोटा हम लोग चूज नहीं कर पाएंगे। 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर सिर्फ ये पार्ट 1.5 बहुत नजदीक ही रहना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है क्योंकि 2 को क्रॉस नहीं कर सकते। 1 और 2 के बीच में ही वैल्यूज चूज करो। 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव है कि नहीं। तो दैट मीन्स अल्टीमेट आंसर ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव ही तो आ रहा है। सो दैट मीन्स 1 से ग्रेटर हम लोग चूज कर पाएंगे। तो एक मिला हम लोग को 1 से ग्रेटर। फिर 2 से छोटा, 2 से ग्रेटर। अब 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर, एक ही तो एरिया है ना, ये एक ही तो स्पेस है। दैट मीन्स 2 से स्मॉलर के लिए भी सेटिस्फाई होगा, 2 से स्मॉलर के लिए भी सेटिस्फाई होगा। फिर 3 में जाओ, 3 से छोटा, 3 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर भी चेक कर लो, 2 से ग्रेटर, ठीक है। 2 से ग्रेटर मतलब 2.5 ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा बट ये नेगेटिव होगा। दैट मींस अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टीमेट आंसर लेस देन 0 आ रहा है बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। सो दैट मींस 2 से ग्रेटर चूज नहीं कर सकते हो। तो 2 से ग्रेटर चूज नहीं कर सकते हो तो 3 से स्मॉलर कहां से चूज करोगे, एक ही तो पार्ट है ना। अब 2 से ग्रेटर, 3 से छोटा, वैल्यूज तो सेम ही आएगा, है कि नहीं। तो कैंसिल। अब 3 से ग्रेटर चूज कर लेते हैं। अब 3 से ग्रेटर आई थिंक ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दैट मींस x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी आएगा। सो कंबाइनिंग दिस 3 कंडीशंस, देखो ये तीनों मिला के कैसे लिख सकते हैं। x का वैल्यू 1 से ग्रेटर, 2 से छोटा। सो x बिलोंग्स टू, दैट मींस 1 से ग्रेटर, 2 से छोटा, दैट मींस 1 और 2 के बीच में रहेगा। सो x बिलोंग्स टू 1,2। फिर 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर मतलब 3 से लेके शुरू करके इन्फिनिटी तक जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करके बीच में यूनियन साइन दे दो, है कि नहीं। तो ये होगा x का वैल्यू, दैट मींस x का वैल्यू इस इंटरवल में ही लाई करेगा। सो इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्वेश्चंस just seems like this. You will have to find the intervals of the x only, okay, and the increasing and the decreasing part will be given in your question. Which function is increasing and which function is decreasing, that will be given in your question. Just you need to find the values of x, that means you need to find the intervals where the values of x are lying, okay. So in these lectures that's enough. I think the basic concepts regarding this increasing and decreasing functions is cleared. So in the next video we will solve the different questions from the increasing and decreasing function as well, both standard questions and the entrance level exams also, okay. So thank you very much for joining my classes. So milte hain next video mein. Till then stay safe and stay healthy, and just if you like my videos then subscribe, like and share my channel, okay. Bye and Jai Hind.